वाड्रा की तरफ नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है, हिम्मत है। मजाक बना रखा है, देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अदानी जी है और कोई है ही नहीं। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा। लवणे न भोजन दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तो कभी नहीं पड़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। लोग तो अपने नोट बना रहे, हम बहाना का लौड़ा मर गए, हमारी दिहाड़ी भी नहीं। गाली ना दो, लेकिन बताओ अपनी बात। फिर इसे बंद कर दे यार थिएटर को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2024 में प्रयागराज में कुंभ लगा था। शाबाश। मोदी मोदी मोदी। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल। In the political system, we have different types of discrimination. We have caste discrimination, we have language discrimination, we have discrimination along the lines of religion. But ये क्या है? ये भाजपाई है। शाबाश। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. पानी आपको पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. And continue this. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I already enjoyed. But Modi साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? देखिए आपने, this is not the time. in the political system, we have different types of discrimination. We have caste discrimination, we have language discrimination, we have discrimination along the lines of religion. But women are the most discriminated against. In fact, the central fight between the BJP and the Congress is about how women should be treated. If you look, for example, at the pictures of the freedom struggle, you will find Mahatma Gandhi always standing with women. You will see in the freedom struggle women at the forefront of the fight. Congress party has had many presidents who were women, has had prime ministers who were women, because we fundamentally believe that women should share power in the country. And we do not see women as inferior to men in any way. ये क्या है? ये भाजपाई है। शाबाश। वाले यही करानी। ये तो 5 साल का ये सफर कैसा रहा? मजदूरी में इतनी दिक्कत आई बहाने की लवड़ी नोटबंदी में। लोग तो अपने नोट बना रहे, हम बहाना का लवड़ा मर गए, हमारी दिहाड़ी भी नहीं। गाली ना दो, लेकिन बताओ अपनी बात। फिर इसे बंद कर दे यार थिएटर को। के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है। नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। रुको जरा, सब्र करो। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो, जरा उपयोग करो। See, while I'm driving through these roads,
your history, your culture, your tradition, your way of life. In fact, just now, before I gave my speech, I was told that the people understand English. That's a good thing. But I wanted my speech translated in Naga language. Because this is the language you use to talk to each other. So I have to respect it when I come here. And I do the same when I go to Karnataka or to Kerala. And this is the language and the culture that the RSS and the BJP are attacking and disrespecting. What you speak, who you worship. प्रधानमंत्री को तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया भी ये एंटी करप्शन ब्रांच मैंने छीन रखी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि शीला दीक्षित की फाइलें सारी अब मेरी अलमारी में है, उनकी अलमारी में है सारी फाइलें। और पंजाब की जनता को जाके कहते हैं केजरीवाल ने शीला दीक्षित को गिरफ्तार नहीं किया। अरे केजरीवाल की शीला दीक्षित को तुमने गिरफ्तार नहीं किया, तुमको गिरफ्तार करना है। तुम मेरे को देके देखो और फिर देखो तुम्हारा मुकेश अंबानी भी नहीं बचेगा और तुम्हारी शीला दीक्षित भी नहीं बचेगी। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, जो तुम्हारे में हिम्मत तो यही है, कभी सतिंदर जैन को पकड़ लेते हो, कभी हमारे एमएलए को पकड़ लेते हो, कभी इनको पकड़। विजय माल्या को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है, हिम्मत है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आज जब इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि देश में तो होगा ही नहीं, दुनिया में भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसका निर्माण आप करें। कहीं से भी बजट का पैसा इंतजाम करना पड़े हम करेंगे, इसको भी एक अच्छी जगह बनाएंगे। I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. भाई मैं तो अकेले ही हूँ और अकेले ही आया हूँ और अकेले ही जाना है। ठीक है। क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते नहीं छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए और फिर बोले कि मैं तो वो हूं जो अकेला आया हूं, अकेले ही चला जाता हूं। हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। बीजेपी की विचारधारा हिंदुस्तान के लोगों को बांटती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरे। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में, दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। ये कोई रंगमंच नहीं है। हमें तो सरसों तेल में लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था। मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स श्री अन्न को अपनाना, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना। Discrimination, we have discrimination along the lines of religion, but women are the most discriminated against. In fact, the central fight between the BJP and the Congress is about how women should be treated. If you look, for example, at the pictures of the freedom struggle, you will find Mahatma Gandhi always standing with women. You will see in the freedom struggle women at the forefront of the fight. Congress party has... आप देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे
वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो ये दोनों झंडे क्यों लगा रखे हैं? अच्छा, ये अलग टीम का है। ये कौन सी टीम का है? ये भारत सदा। और तुम? मैं ये बीजेपी। अच्छा, दोनों अलग अलग टीम के हो। वाह यार, चलो बढ़िया यार। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। भारत माता की। अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये धरती है, ये भारत माता इस देश के लोग हैं। मेरा कहना है, अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी पड़ेगी। भारत माता आप लोग हो। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है। हमें नहीं चाहिए अदानी का हिंदुस्तान, हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की इज्जत हो। जब से आया है झूठ बोल रहा है। देश की समस्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बिजली, पानी, इस पर काम करो। हिंदू मुसलमान, यहाँ से एक मुसलमान को बाहर नहीं कर सकते, एक मुसलमान। तो योगी और ये सब भोगी बदमाश है। हक की ये हुंकार है, भारत की ये पुकार है। निकल पड़े हैं सीना ताने, अन्याय का नामो निशान मिटाने। हौसला बुलंद है, युद्ध ये प्रचंड है। देख रहा संसार है, घर घर से आई ललकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2024 में प्रयागराज में कुंभ लगा था, 24 करोड़ लोग वहां डुबकी लगाने के लिए संगम में आए थे। उस कुंभ में आप में से भी कोई न कोई जरूर गया हुआ, गया ना कि नहीं? भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी भारत माता की कांग्रेस पार्टी। जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना, फिर देखना क्या होता है। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक। लवणेन भोजन दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा
इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मोदी मोदी मोदी। ये मूर्खों के देवता उल्लू महाराज है। उल्लू में और चमचों में एक बात सामान्य है। क्या? उल्लू को दिन में नहीं दिखता है और चमचों को विकास नहीं दिखता। विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साथ का चेहरा दिखता है और पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं। सर आपने माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया सर आपने सर। अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आज माइक बंद कर देते हैं। पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। मैंने पार्लियामेंट में राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में, तो जानते हो क्या होता है? मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मोदी जी के जल्दी हटा। ये मोदी जी ये चुगलाबाजी कर रहे हैं, बताइए। ये भगवान के हाथ में का भगवान के तो ही जन्म दिया, दशरथ जी है, ये दशरथ जी है जो भगवान के तो हाथ पकड़ के करके लेके जा रहा है। ए मोदी जी प्लीज आप मेरी भावना समझिए नरेंद्र भाई, आपने कोई बलिदान नहीं दिया देश के लिए, आपके घर से कोई मरा नहीं है। जिनके घरों में लाशें बिछती है ना, वो उस दर्द को जानते हैं। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दूं मीडिया पर, लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना। ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी। और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है। मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूँ। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू, ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। कितना भी अपमान किया, वो बैरिस्टर थे, तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जब आपको जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। सबसे पहले आपको जरूरत आजादी के समय पड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ खड़े होकर अंग्रेजों को परे कर दिया, हटा दिया, भगा दिया। उसके बाद हरी क्रांति, सफेद क्रांति, लिबरलाइजेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सारा का सारा काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ कदम मिलाकर किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब देश में क्रांतिकारी काम करने का समय आ गया है। अब ये जो देश में बेरोजगारी फैला दी है नरेंद्र मोदी ने, जो महंगाई फैला दी है नरेंद्र मोदी ने, इसको खत्म करने का समय आ गया। और इसका तरीका पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देने का है। छोटे काम होते रहेंगे मगर क्रांतिकारी काम, जाति जनगणना का काम राजस्थान में और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए करने जा रही है। जिस दिन पिछले वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन देश बदल जाएगा, देश में क्रांतिकारी काम हो जाएगा, देश का चेहरा नहीं पहचाना जाएगा।